हे गाइस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल मेक दिस वीडियो बट हो गया। 6-7 महीने हो गए। द काइंड ऑफ सिचुएशन वी ऑल आर थ्रू इज़ प्रिटी अलार्मिंग एक्चुअली। जो हो रहा है, डू यू थिंक इट्स ऑल राइट फॉर अस टू स्टे साइलेंट, not to say put our views across for the people who are in power? ये क्यों हो रहा है यार? देर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग. फर्स्ट देयर वाज सुशांत केस, before that there was Riya Salian's case and sorry, Disha Salian's case, and now it's kind of going above the limit. Like कल तक या आज सुबह तक मैं सोच रहा था कि ओके चलो कुछ नहीं, चलो जो हो रहा है हो रहा है. But then I have been always a person who thought कि चलो हमारे सिस्टम में कुछ तो अच्छा है. We have courts, we have a judiciary, we have a police. I'm not talking about police because पुलिस की बात ये हो जाती है कि they are always dependent on someone's order. They will have to follow the order. लेकिन why judiciary, our bureaucracy, our say and our netas, why they are doing this? यार कोई आप पे क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल ड्रैग हिम आउट ऑफ द हाउस एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स विदाउट एनी रीज़न. चलो पहली बात तो ये है कि आपने चलो किसी को पुल किया, लेकिन एटलीस्ट अपने बचाव में कुछ तो अच्छा एक बना लेते यार, दैट यू कुड हैव प्रेजेंटेड एज एन एक्सक्यूज. You have nothing to present as an excuse that why have you pulled Arnab into this. You remember the session court wherein you produced Arnab? The judge herself said that this is not the right way to do things. Why did not you take at least a small burden to approach a court, get an arrest warrant and book this guy? You could have done that, and then a republic or Arnab would not have any other option to abide by the law. That is why they are like creating a kind of scene, right? कि अर्नब को उठा लिया, अर्नब को उठा लिया. यार आप कैसे किसी को विदाउट एनी पेपर्स उठा सकते हो? आर वी लिविंग इन अ पुलिस स्टेट? आपको जब मर्जी आए आप किसी को भी उठा लो, किसी को भी बंद कर लो. वेयर आर वी गोइंग एक्चुअली? रिमेंबर जब आप लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी से छोड़ के नहीं लड़ा था. फिर भी आप जिनके अपोजिट में इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हीं के साथ जाके आपने गवर्नमेंट बनाया. दैट्स ओके, दैट्स योर राइट. You can go into say election tie-up and then break it, and have yourself say crowned as the chief minister of the state. But then how many times you can do this? It's only once. It cannot be twice. People of Maharashtra will not vote for you. I have my relatives in Maharashtra, I have my relatives in Mumbai, but frankly अगर कोई दूसरी बार मेरे से आके पूछे, and I have my relatives wherein BJP even did not fight. It was Shiv Sena, and my relatives were like, okay, if BJP is not here, we'll vote for Shiv Sena. Maybe that is the reason because of which a lot of people voted for you. People did not like you, Shiv Sena. You just remember it. People did not like you. It was because you were with BJP people liked you, or people voted for you. आपकी लोकस स्टैंडाई कहाँ रहती अगर आप बीजेपी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ते? आपको शायद जितने भी एमएलए आए हैं उनके आधे भी नहीं आते, 1/4 नहीं आता यार. Not even 1/4 of the seats what you have won.
But then you are creating all this kind of rakshak around Mumbai and Maharashtra. You are going on beating retired Navy personals. You are breaking someone's house. You are pulling someone only to set a kind of precedence that no one should speak against you. Okay, if that is the case, maybe people of Maharashtra will not speak against you for maybe 4.5 years, which is remaining for you. Whatever you do, you can do, but then there will be an election. There will be people around India who will keep on saying against you or speaking against you. You cannot book everyone and put them behind the bars, right? You cannot do that. इतना अगर आपको किसी को अरेस्ट करने का शौक है और आप हर किसी को अरेस्ट करोगे तो आपके महाराष्ट्र में जेलों की कमी हो जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या करोगे? क्या आप ड्रेडेड क्रिमिनल्स को छोड़ के बाकी लोग जो वीडियो बना रहे हैं या जो आपके अगेंस्ट पे बोल रहे हैं उनको आप लोग जेल पे डालना चालू कर दोगे? कैन यू डू दिस? एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन. लाइक रावण को देख लो यार, राम जी ने उनको तब तक नहीं मारा था जब तक अति नहीं हो गई थी. आप शिशुपाल को देख लो, कृष्ण भगवान गिनते रहे कि 100 हो जाए बेटा, तू तो जाएगा. आप यही सब करते रहोगे तो 100 होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा भाई. सच बात है उद्धव जी. I never expected this kind of thing to happen from the son of legendary और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के वंश से. मुझे तो ये उम्मीद कभी नहीं थी कि आप ऐसा करोगे. जब राज ठाकरे आपसे अलग हुए थे तो आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ चलो कि शायद बाला साहब ने आपको चुन के अच्छा किया है. लेकिन आज मुझे लगता है कि बाला साहब के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने आपको चुना, राज ठाकरे को नहीं चुना. क्योंकि जहाँ तक मुझे राज ठाकरे जी के बारे में पता है, वो तो ये सब नहीं करते. और देखिए उद्धव जी, इट्स सिंपल, ठीक है. टाइम ऑलवेज, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ. आप इंदिरा गांधी को ले लीजिए, आप राजीव गांधी को ले लीजिए, आप और किसी को भी ले लीजिए. आपसे तजुर्बे में, ओहदे में, they were pretty higher than you. You are just the CM of Maharashtra and they were PMs of India. Right? Indira Gandhi brought in emergency in 1975 and then lost the elections. She was never the same after she won back the power also. And I'm sure the kind of things you and Shiv Sena is doing, next time you will not have an opportunity. You wanted to serve Marathas, and is this the way you are serving Marathas? You cannot fire a person rather than you reward a person. Sanjay Raut, he has the audacity to call a woman हरामखोर, जिनकी नाम पे आपने पार्टी बनाई है शिवसेना, शिवाजी की सेना. वो शिवसेना, वो महाराज शिवाजी, वो छत्रपति शिवाजी, वो हिंदू, मुस्लिम और किसी भी धर्म के औरतों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते थे या बुरा किया नहीं है.
इतने कितने सारे उदाहरण है. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर द women of the enemies, precisely Muslim enemies, were returned to their places with dignity and respect. वो बंदा जो एक गाय को कटते हुए नहीं देख सकता था, 14 साल की उम्र पे अपना तलवार पे हाथ रख के अपना तलवार निकाल के कसाई का हाथ काट सकता था, वो बंदा अगर चाहता तो मुस्लिमों की जो औरतें थी उनको बेआबरू करके, उनकी इज्जत लूट के, अपने सैनिकों के बीच में उनको भूखे भेड़ियों की तरह यानी बकरे की तरह छोड़ सकता था, जो और उनके सैनिक उन पे भेड़ियों की तरह टूट जा पड़ते. लेकिन शिवाजी महाराज ने ये किया नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जीजा माँ का आशीर्वाद था. आप पे किसका आशीर्वाद है? बाला साहब ठाकरे कितने भी बड़े हो जाएं, वो शिवाजी महाराज तो नहीं बन सकते. आपकी माताजी का नाम मेरे को पता नहीं है, बट वो भी कितने भी बड़ी हो जाएं, कितने भी महान बन जाएं, वो जीजा माता की जगह तो नहीं ले सकते. तो कहीं तो खोट आपके संस्कार में है. चलिए, पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से आपने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, आपने एनसीपी के साथ सरकार बना ली, बट कहीं तो एक रीढ़ की हड्डी दिखाइए उद्धव जी कि हाँ, मैं बाला साहब ठाकरे का लड़का हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और जो सही है उसके सपोर्ट में खड़ा रहता हूं. बाला साहब ने कभी आके पब्लिक में ये नहीं बोला कि हमारे शिव सैनिकों ने कुछ नहीं किया. शिवसेना एज ए पार्टी बाला साहब के टाइम पे जितनी वाइडली पॉपुलर थी, आपको पता है बाला साहब के जाने के बाद उस पार्टी की हालत क्या हुई है? आपके वोट परसेंटेज लगातार घटते जा रहे हैं, और जो आप अभी कर रहे हैं उसकी वजह से आपके वोट कहीं के भी नहीं रहेंगे, आपको कोई वोट नहीं करेगा. इसलिए अच्छा है, संभल जाइए, सुधर जाइए. अर्नव के अगेंस्ट पे जो केसेस हैं वो विड्रॉ करिए, जेल में जाइए, अर्नव को छुड़ाइए, लॉकअप से बाहर लाइए, और उसको बोलिए कि आपको जो बोलना है आप बोलिए, हमें जो काम करना है वो हम करेंगे, एंड वी विल डू इट विदाउट एनी inclination to anyone, whoever it is. If they have committed a crime, we has an authority to book them, to bring them before the law. कुछ तो उदाहरण पेश करिए, नहीं तो आपको पता है आज के देश का जो कॉमन मैन है वो जागा हुआ है. मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ना तो मेरे पास बहुत पैसा है, ना तो मेरे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, ना तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है. मैं कहीं एक कंपनी में काम करता हूँ, पर्सनल लोन लेता हूँ, होम लोन लेता हूँ, और मैं अपने सैलरी में से EMI देता हूँ. देश के लिए जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है मैं करता हूँ, और मैं अपना काम करता हूँ, मैं खुश हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, लेकिन हाँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ. क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जानने की और समझने की अकल है मुझ में. मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनमें होगा, जो सामने आके बात करने से डरते हैं या फिर बात नहीं करते बिकॉज दे थिंक दिस विल नॉट अफेक्ट देम, बट आई एम श्योर दिस इज अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड, एंड दिस विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड. सो प्लीज़ आपसे एक हाथ जोड़ के
आपसे एक विनती है, मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानो, आपको क्या लगता है आप कितना दिन किसी को जेल में रख सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना? आप किसी को जिंदगी भर के लिए जेल के पीछे नहीं डाल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? आज की जो सिचुएशन है, द काइंड ऑफ act you are doing, you can put someone behind the bar. You can stop Republic from telecasting from Maharashtra. That's it. अरे भारत में बहुत जगह है जहाँ पे चैनल चले जाएगा, वहां से टेलीकास्ट करेगा, आपके यहाँ से नहीं करेगा। आप क्या कर लोगे अगर चैनल आपके बाजू में कहीं मध्य प्रदेश में चला गया तो, आपके बाजू में कहीं तेलंगाना में चला गया तो, आपके बाजू में कहीं कर्नाटका में चला गया तो, आपके बाजू में भी नहीं जाए तो कहीं यूपी में चला गया, कहीं दिल्ली में चला गया, आप क्या कर लोगे किसी का? आप किसी का कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है आप कुछ तो कर सकते हो, जब वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे वो यहाँ मुंबई में बैठ के चिल्लाता है वैसा वो दिल्ली में बैठ के चिल्लाएगा। और मैं रिपब्लिक देखता हूँ, मैं मानता हूँ मैं रिपब्लिक देखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे 500 रुपये दिए। मेरे घर पे सेट टॉप बॉक्स लगा है, उसमें बहुत सारे चैनल्स आते हैं जिनके न्यूज़ मुझे रिलेवेंट नहीं लगते, मैं देखता नहीं हूँ। मैं रिपब्लिक देखता हूँ क्योंकि मुझे वो रिलेवेंट लगता है, और मैं देखता भी रहूँगा अर्नब को। ये आज की बात नहीं है, मैं अर्नब को 5 साल से देख रहा हूँ। सो प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस, ठीक है? और आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने किसी को जेल पे डाल दिया तो बोलना बंद हो जाएगा, नहीं सर, बोलना ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो लाइक माइंडेड पर्सन्स होंगे, जो इसके बारे में सोच रहे होंगे, वो सामने आएंगे और वो बोलना चालू करेंगे। आप एक जुबान को बंद कर सकते हो, आप लाखों जुबानों को बंद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट। तो जो भी दोस्त, मुझे पता नहीं है मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा भी नहीं है, शायद एक भी नहीं है इस चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो होगा इस चैनल पे, और अगर YouTube थोड़ा सा कोशिश करेगा या YouTube थोड़ा सा हेल्प करेगा, शायद मैं 10, 15, 20 जन के पास पहुंच जाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये आवाज़ बहुत लोगों के पास पहुंचे, जो मेरे तरह सोच रहे होंगे उनके पास तो ज़रूरी पहुंचे। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ये चाहूँगा कि आप एक वीडियो छोटा सा बनाइए, इस पे यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, ट्विटर पे डालिए। शायद कोई नहीं देखेगा, फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। लेकिन इसी तरह का अगर हम लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख वीडियो बना पाए तो क्या सरकार नहीं हिलेगी? आपको रामधारी जी दिनकर का वो कविता तो याद होगा, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। अगर हम लोग मिलके ये आवाज़ लगाएं तो कुर्सी तो खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता आ जाएगी। और जनता अगर कहीं आ जाए तो कुर्सी खाली करनी पड़ती है, क्योंकि वो कुर्सी जनता ने दिया हुआ है और जनता उसे खींच भी सकती है। चलिए, बस इतना ही बात करना है, अब काम करने का टाइम आ गया है। जय श्री राम, वंदे मातरम।